Hello students, our today topic is potentiometer. So you know that meter that any device that measures something, and here the word potentio is attached. The potential means potential difference that can be measured. So a potentiometer is a device that can be used to measure the EMF of the source or cell accurately. This word is very important to write accurately without drawing current from the device. Here we have a device cell that having EMF, and that EMF we have to measure that accurately. So here one question arises that voltmeter also used to measure the potential difference of the device. The potential difference, why not we are using the voltmeter to find out the potential difference? Because potential difference will give the approximate value, not exact or accurate value. Suppose here we have a resistor and high current is flowing throughout this resistor, and we want to find out the potential difference across the resistor. Then we will connect here voltmeter. So this voltmeter will give the deflection when some part of the current will flow throughout the voltmeter. Then the part of the current that goes towards the voltmeter that will be reduced through this resistor. So through this resistor less current, this I amount less current will be reduced. It means the potential difference across this resistor get reduced. Mean it will not give the exact value because some part of the current will move toward the voltmeter. That's why the voltmeter will work, otherwise it will not work when no current will through this voltmeter. So क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द करंट दैट क्या करता है, फ्लो करता है वोल्टमीटर के थ्रू, तब क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है. इट मीन जो एक पार्ट यहाँ पे गया कि थ्रू आउट द वोल्टमीटर रजिस्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, उतना पार्ट कम हो जाएगा. सो दिस विल नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर. सो सेम हेयर इफ वी विल यूज एनी सेल, और उस सेल के अक्रॉस हम क्या कर दें, कोई भी वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें, तो वो वोल्टमीटर क्या करेगा, करंट को क्या करता है, चार्ज को क्या करता है, ड्रॉ कर देता है. जब ड्रॉ कर लेगा सेल से तो पोटेंशियल डिफरेंस जो उसका ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन वी कैन नॉट से दैट इज एक्यूरेट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सेल. सो voltmeter just give the approximate value of the EMF of the cell. So that's why we are not using the voltmeter to find the potential difference of the cell. So here we are using the device of potentiometer that will give the exact value of the potential difference of the cell. So now come to the principle. It works on the principle that the potential difference across any part of the uniform wire is directly proportional to the length of that portion of the wire when constant current flowing throughout the wire. So firstly you look at the diagram here. In this diagram here we have a long wire AB having uniform area of cross section, having resistance R, length L, AB the area of cross section, and rho be the resistivity of this wire, and this wire is made of constantan or magnon. Those are the standard material, those are used to make the standard resistors. So fixed on the board, ये जो वायर है ये कहाँ कर रखी होती है, बोर्ड के ऊपर फिक्स कर रखी होती है विद हेल्प ऑफ मीटर स्केल. जैसे हमने मीटर ब्रिज को यूज किया था, मीटर ब्रिज पढ़ा था, तो ये वायर वहां पे क्या कर रखी होती है, फिक्स कर रखी है. ये दो एंड्स होते हैं ए और बी, एंड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ए बी एमीटर इज यूज्ड सो दैट इट विल मेजर द करंट इन द सर्किट. एंड दिस इज अवर बैटरी. इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बैटरी भी बोलते हैं. बड़ी दिस स्टैंडर्ड बैटरी ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी बैटरी और ड्राइविंग बैटरी भी बोलते हैं इसको, ड्राइविंग बैटरी में ये जो बैटरी है सर्किट को क्या करेगी, रन करवाएगी. ये वो सेल नहीं जिसका हमने ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ये वो बैटरी है जो इस सर्किट को, इस डिवाइस को क्या करेगी, रन करवाएगी. मतलब ये क्या करेगी, इसमें करंट का फ्लो करवाएगी थ्रू दिस डिवाइस. ये हमारे पास क्या होगा, एक प्राइमरी सर्किट. ये प्राइमरी सर्किट है. जब हम इस प्राइमरी सर्किट का यूज करेंगे, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन होगी, तो हम वहां पे एक सेकेंडरी सर्किट ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारे पास प्राइमरी सर्किट होगा
जो काम करेगा किसी भी करंट को फ्लो कराने में, इस सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा क्या, करंट। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बाद में। तो एक रियोस्टेट लगा रखा है यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, की होगी। और ये वन एंड ऑफ दिस वायर ए के साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा और साथ में क्या है, जॉकी लगा रखी है। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है, इट टेल्स अस व्हाट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सपोज हेयर अगर हम क्या करें, आपको पता है यहाँ पे अब देखो ईएमएफ जो है, ये जो सोर्स है हमारे पास बैटरी है, इसका जो यहाँ पे अक्रॉस द एंड होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ईएमएफ नहीं होगा, वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि इस वायर ए बी के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा रखा है यहाँ पे, तो इसका कुछ एक पार्ट जो होगा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ए बी का पोटेंशियल अलग होगा, रियोस्टेट के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। सो ए बी के क्रॉस में क्या है, यहाँ पे ईएमएफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ए बी वायर के अक्रॉस। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये देखो ये ए बी वायर है, ये ए बी वायर है, और यहाँ पे ये पैरेलल में सीरीज में जुड़ा किसके, रियोस्टेट के, तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो लेट पोटेंशियल कितना है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी रखना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वी और 0, हियर वी है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया क्रॉस ए बी, दैट इज वी। सो अगर हम क्या करें, एक जॉकी को स्लाइड करें ओवर दिस वायर, इस जॉकी को स्लाइड करेंगे ओवर दिस वायर, देन वी ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, बिकॉज वी टू 0 जाएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज। एंड सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस लेंथ, अब फ्रॉम दिस ए एंड अप, मान लो यहाँ तक हमें क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट, दैट पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट। हम प्राइमरी सर्किट का यूज कर रहे हैं स्टिल नाउ, वी आर नॉट हैव ड्राइंग इट फॉर सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट पढ़ेंगे जब हमारे पास क्या होगी इसकी एप्लीकेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ए जे, मान लो अपने पास के जॉकी को स्लाइड किया जे पर, और ये जो ए जे लेंथ आ गई अपने पास क्या, एल। तो ए जे के अक्रॉस जो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वी, लेट इट बी वी मान लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल क्या है, दैट इज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ओके, दिस इज, सो नाउ वी विल प्रूव दिस प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो लेट I be the current flowing in the circuit. I is the current flowing in the circuit. Then according to Ohm's law, V is equal to IR। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, एक आई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट फ्लो करते जाएगा यहाँ पे, और लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। सो क्या लिख दिया, वी इज इक्वल टू आई आर, एंड बिकॉज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो वी कैन राइट हियर वी इज इक्वल टू आई रो L upon A. So because I is constant, rho is constant. Principle that when constant current flowing throughout the wire. This line also very important to write in the principle. So I constant है, rho भी क्या, resistivity भी क्या है, constant, then we can write V is इक्वल टू के एल, और ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ऑलरेडी रिटन द प्रिंसिपल। सो हियर वेयर के इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, और ये लेंथ जो एल वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि जॉकी को हम स्लाइड करेंगे ओवर द वायर, तो वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है।
So we can write V where K is the constant and V is directly proportional to L. V is directly proportional to L because जब कि हम स्लाइड करेंगे तो L क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा. सपोज आपसे पूछ ले 10 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 20 सेंटीमीटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस, देन वी कैन फाइंड आउट दैट पोटेंशियल डिफरेंस. So that is V is equal to KL. So V directly proportional to L. So here one important we are going to find out that V is equal to KL and this implies K is equal to V upon L. और ये V क्या है, पोटेंशियल, और L क्या है, लेंथ. हम इसको बोलते हैं दैट इज अ चेंज, और वी कैन से दैट ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर के साथ पोटेंशियल क्या कहा जाएगा, चेंज. इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको. चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकॉज यहाँ पे लेंथ के साथ पोटेंशियल क्या करेगा, चेंज करेगा. जैसे यहाँ चेंज करेगा, यहाँ चेंज करेगा, यहाँ करेगा चेंज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर, दिस इज आई थिंक. सो here next this is a potential gradient. Now potential gradient, that is change in potential with respect to length of the wire. So now here sometime question they are asking what is the sensitivity of the potential. Sensitivity mean or we can say that how to make our potentiometer more sensitive. Sensitivity means that small potential difference that can be measured accurately. That can be measured accurately. जितना ज़्यादा कम पोटेंशियल होगा इसका मतलब वो डिवाइस की होगी ज़्यादा सेंसिटिव होगी. मतलब कम से कम पोटेंशियल का मेजर करना, मतलब ये मेजर कर सकता है कम से कम 0.001 दैट इज 1 मिली वोल्ट तक. 1 मिली वोल्ट तक क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को. इसका मतलब वो ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होता है. तो हाउ टू मेक, क्वेश्चन आता है हाउ टू मेक इट सेंसिटिव. पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट पोटेंशियोमीटर कैन बी मेक मोर सेंसिटिव by decreasing K mean potential gradient, by decreasing potential gradient, and potential gradient can be decreased, K can be decreased by increasing resistance or increasing length because K is equal to V upon L. सो लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. लेंथ बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा. और बाय डिक्रीजिंग करंट, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज. सो बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करना, कम से कम. चेंज इन पोटेंशियल मतलब कम से कम करना उसको. सो दैट देन डिवाइस बिकम मोर सेंसिटिव. सो दैट कैन बी डिक्रीज बाय increasing resistance, by increasing length of the potentiometer wire, or by decreasing the current. So modified for circuit or modified electrical circuit of this potentiometer is this here. This is the one segment of the wire of 1 meter, this is second segment of the wire 1 meter, this is 3 meter, then this is 4 meter. So length of the wire that can be increased in this way. So here we have copper strips, here we have used copper strips, larger area की copper strips होती है, so that they will not introduce their own resistance in the circuit. और ये जो हमारे पास 4 मीटर की जो वायर है उसकी जो खुद की रेजिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, that cannot be further increased by connecting those wire with the help of copper strips. copper strips की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, so that circuit की खुद की रेजिस्टेंस क्या हो, इफेक्ट ना हो. So I think this topic is clear to all of you. This is just a primary discussion of this potentiometer. So I hope this is understood to all of you. Thank you.